हाँ जी देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यू सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एंड ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9 तक फाइंड की करना ए कॉम्पलीमेंट। ठीक है जी यू और ए सेट गिवन है कॉम्पलीमेंट आप कितना फाइंड करते होंगे सी यू माइनस ए इदी करते होंगे सी फाइंड तो कितना हो जाना यू सेट लिखो सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस दैन फिर किहड़ा ए सैट 1 3 5 7 9। ठीक है जी यही हम दसेगा हुण देखो ए सैट की आ 1 3 5 7 9 आ यही माइनस करना मैं यू चो तो इधरों माइनस करो की हो जाएगा माइनस 1 3 5 7 9। ठीक है जी तो ए कॉम्पलीमेंट ਲਈ मेरे को सैट बच किहड़े गए फिर 2 बच गया 2 4 6 8 10 यही बचा ना 2 4 6 8 10 ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ए यूनीयन की बोल रहा है वो वाले एलीमेंट ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬਟ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ तो ए ਨੂੰ ਆਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ और जो यू ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ एलिमेंट मैं ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੇ तो मेरे को की हो गया ए कॉम्पलीमेंट। ठीक है जी नैक्सट एग्जाम्पल देखो की बोलता है टेकिंग द सैट ऑफ नैचुरल नंबरस एज अ यूनीवर्सल सैट ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣ तो ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣ तो ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੈਟਸ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n ਐਂਡ x ਇਜ਼ ਈਵਨ तो ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਈਵਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਈਵਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 2 4 6 8 10 12 14 16 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸੋ ਔਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਈਵਨਸ ਵੀ ਸੋ ਔਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ मैं यू सैट लिया आ देखो पहले तो मैं यू सैट ले लिया नैचुरल्स नंबर का 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है जी ये सैट ले लिया उन्हें बोली सी जो पहली लाइन फिर उन्हें की बोलिया सैकेंड लाइन कि थानू थल्ले जिन्ने भी सैट गिवन दिते हैं उन्हें सारे का कंप्लीमेंट फाइंड करो। फर्स्ट उन्हें मैंने सैट दिता एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ ईवन तो मैं इन्हों चों नैचुरल नंबरस का सैट बना लिया ਜਿਹੜੇ ਈਵਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਗੇ 2 4 6 8 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਯੂ ਚੋਂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਯੂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ तो उन्होंने मैं ईवनस नंबर में माइनस कर दूँगी 2 4 6 8 10 में माइनस करता तो मेरे को बच के गया ऑड नंबर से ही बचे ना। अगर मैं नैचुरल्स चो सारे ईवनस नू माइनस कर दूँगी मैं तो बच के जाने ऑड किहड़े हो गए फिर 1 3 5 ठीक है 7 9 सारे 11 ये बच जाएंगे। लगी समझ। सैकेंड वो की बोलता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स इज़ ऑड नंबर। हुण एक्स अगर ऑड या सारी दी सारी सेम एज दैट एक्स इज़ ईवन सी इत्थे की हो गई ऑड तो इत्थे कितना आ जाऊगा 1 3 5 ठीक है 7 अप टू सो ऑन तो ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗਾ ਈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਈਵਨਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਈਵਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਐਕਸ ਸਚ ਦੈਟ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਇੰਟੂ ਐਨ ਫॉर ਸਮ ਐਨ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਨ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3n। ठीक है जी 3n की मतलब हो गया कि मैं 3 ਦੇ ਨਾਲ कोई भी n एलीमेंट ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਉਹ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। तो ਇਹਨੇ ਕੀ कहता n ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। तो n ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 3 ਇੰਟੂ n ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ n ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n ਐਂਡ x ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ
x इज इक्वल टू 3 इंटू एन, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 ਸੀਗਾ, तो दूसरे चों ने की बोलता कॉम्प्लीमेंट कि नॉट आ मल्टीपल ऑफ 3। जिदा सेम इधर ਸੀਗਾ, इधरों ने की बोलिया ਸੀਗਾ कि ਈਵਨ नंबर सी, ऑपोजिशन की आ गया ਉਹਦਾ आंसर ऑड, इधर ऑड ਸੀਗਾ ऑपोजिशन मतलब कॉम्प्लीमेंट ਉਹਦਾ आंसर कितना आ गया ਈਵਨ। ठीक है जी। ਹੁਣ आ जाओ let a x belong x such that x is a prime number, x is a prime number, तो यदि ऑपोजिशन की आ जाएगी x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, उन्हें की बोलता कि प्राइम नंबर लिखो, तो आप प्राइम नंबर की ऑपोजिशन चले जाना है। ठीक है जी। ऑपोजिशन प्राइम नंबर वैसे होंगे किहड़े आप दस चुके हैं ना कि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना, दो फैक्टर्स किहड़े मतलब 2 इंटू 1, ठीक है जी। दैन हो गया 11 इंटू 1, 7 इंटू 1, दो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 और 1 दो फैक्टर्स हो गए ना, बट उन्होंने आंदा कि 1 1 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨੈਕਸਟ 7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, 11 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 9 9 नहीं हो सकता, क्यों 9 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ। ठीक है जी, इसलिए 9 नहीं हो सकता। 5 अपने आप नाल हुंदा है, 13 अपने आप नाल हुंदा है। ठीक है जी। सो ऑन इदा दी, तो उसकी ऑपोजिशन किहड़ा आ गया पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। उसकी प्राइम नंबर की ऑपोजिशन आ गया। नैक्सट उन्होंने की बोलिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ अ परफेक्ट स्केयर, ये हो गया परफेक्ट स्केयर। ये ऑपोजिशन आ जाओ मतलब कॉम्प्लीमेंट आ जाओ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। ठीक है, यही हो सकता जिदा ईवन सी उसकी ऑपोजिशन आ गई ऑड, ये हो गया परफेक्ट स्केयर नॉट अ परफेक्ट स्केयर। नैक्सट आ जाओ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है जी। नैक्सट की आ जाऊगी यदि ऑपोजिशन कॉम्प्लीमेंट नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है जी। नैक्सट आ जाऊगा लेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 मतलब की बनता पाया 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये तो हो गया सैट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। बट मैं उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट की होंगी ऑपोजिशन। अगर मेरी एक्स इतने 3 है तो यह मतलब की है कि इतने 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो रहा, मतलब की हो रहा है कि मेरे एक्स इतने 3 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, बट जो मेरा एक्स इतने 3 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ तो मेरी ऑपोजिशन 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ कि नॉट ਬਿਲੋਂਗ ਹੋਵੇ। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, जो चीज़ ये ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आनी ਹੁੰਦੀ, यही ਹੁੰਦੀ ना कि जो ये ਉਹ 'ਚ ऑपोजिशन 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। अगर ये ਈਵਨ ਆ ਫਿਰ ऑड आ, अगर इतने ऑड आ इतने ਈਵਨ आ। ठीक है, अगर इतने 3 ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ then इतने 3 ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ नहीं करता होना चाहिए। ठीक है जी। नैक्सट आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9। हुण ये एक्स नूं की पुट करूँगी मैं 2, की हो गया 2 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इट मीनस की हो गया कि एक्स इतने 2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ठीक है जी। एक्स इतने किहनूं करदा पिया 2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਉਹਦੀ ऑपोजिशन कॉम्प्लीमेंट 'ਚ 2 ਨੂੰ नहीं बिलोंग करता होना चाहिए, मतलब नॉट इज इक्वल टू। अगर इतने 2 के इक्वल आता पाया इतने नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। दैन की हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल एंड एक्स की होगा फिर ग्रेटर और इक्वल टू 7। गल वो नैचुरल नंबरस की करता पाया आ, वो नैचुरल कितों स्टार्ट होंगे 1 तो स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। उन्हें की गल की कि तुहाडा कोई इदा दा ए सैट आ, ठीक है जी, जोड़ा 7 के इक्वल और 7 तो बड़ा है, बट यदि ऑपोजिशन की होना चाहिए आ तो कॉम्प्लीमेंट की होना चाहिए है कि 7 तो छोटा होवे। ठीक है, 7 तो छोटे नैचुरल्स किहड़े हो सकते हैं 6 तक, मतलब 6 तो छोटा होवे और 6 तक होने तो की होणगे 1 2 3 4 5 6। लगी समझ ये देखो उन्हें की क्या कि नैचुरल जोड़े एक्स तो एक्स आ जी जो भी नंबर्स हो 7 तो बड़े या 7 के इक्वल आने चाहिए आ, बट वो ऑपोजिशन की होंगी है कि ऑपोजिशन होने चाहिए। ऑपोजिशन की हो गया फिर 7 तो छोटे होंगे और 7 तो छोटे कितों तक हो सकते हैं 6 तक, जहाँ तो 6 तो छोटे होंगे जहाँ फिर 6 के इक्वल होंगे। तो किन्ने आ गए 1 2 3 4 5 6। हुण कई बच्चों के दिमाग 'च होना कि आप यही क्यों लए आ, 7 तो छोटे तो माइनस भी हो सकते, माइनस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, बट नहीं क्यों, क्योंकि इतने नैचुरल पूछा और नैचुरल अपने कितों स्टार्ट होंगे ऑलवेज 1 तो। ठीक है जी। ये तुसीं स्टैंडर्ड्स जिहड़े आपां पार्ट 1 च समझाइयां ना सारियां स्टैंडर्ड्स उन्होंने याद रखना है। नैक्सट देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ अ डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब एक्स इदा का नंबर आ जोड़ा 3 और 5 के नाल डिविजिबल आ, तो इसकी ऑपोजिशन की होगी कि एक्स एक इदा का नंबर होगा जोड़ा नॉट डिविजिबल बाय होगा 3 एंड 5 के। ठीक है। नैक्सट आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर 10। ठीक है। हुण देखो इक्वेशन गिवन मैं इक्वेशन को सॉल्व आउट करन लगी हां, किद्दां लिखांगे 2x ग्रेटर दैन 10
आइधर प्लस का प्लस का 1 से उधर जाके किहड़ा हो गया माइनस का 1, तो कितनी इक्वेशन बन गई 2x ग्रेटर 9, इन्ना हो गया ना, 10 चो 1 गया 9, तो मैं x का ही फाइंड करनी, x की वैल्यू आप फाइंड करते होंगे हो, तो कितना हो गया x ग्रेटर 9/2, ठीक है जी। दैन की हो गया 4.5 होंगे ना, जो तुम 9/2 करके देखो सॉल्व, डिवाइड करके देखो 4.5 आ जाना आंसर। हुण उन्होंने इस इक्वेशन आ वाली जी मैं इक्वेशन बनाई आ इक्वैलिटी चले जाऊगा, की हो जाऊगा कि उन्हें बोलिया सीगा ग्रेटर दैन 10 हो, बट फिर मेरा की हो जाऊगा 9 के इक्वल या फिर 9.2 के लैस या फिर इक्वल या फिर ग्रेटर, ठीक है जी। हुण इनू तुसीं सॉल्व आउट किद्दां करना आ, लैस ग्रेटर तुसीं ध्यान च रखना आ ए सैट च और कॉम्पलीमेंट ऑफ ए सैट च। फस्ट ऑफ ऑल इक्वेशन सी सैट ए दी मैं सॉल्व आउट की, हुण ग्रेटर दैन मतलब 10 उन्हें की बोलिया सीगा, जो मैं सॉल्व आउट किया वो 9 ते आ गया, 9.2 ते आ गया, गल वो करदा सी ग्रेटर दी, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि 9 ਦੇ इक्वल हो सकता ਜਾਂ फिर 9 तो ज़्यादा हो सकता, ग्रेटर हो सकते हैं जिन्ने नंबर्स आएंगे 9 ਦੇ इक्वल हो सकते ਜਾਂ फिर 9 तो ज़्यादा होणगे, यही हो गया इस इक्वेशन ये तो इक्वेशन हो गई मेरी सॉल्व आउट। हुण इक्वेशन मैं इदा भी तो लिख सकती हूँ 4 इदा भी x 1/2 आह वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। हम इन्हें सॉल्व आउट कर लो, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ किया मल्टीप्लाई 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 प्लस किया 9 की बन गया, फिर मेरे को अगेन 9/2 आही चीज़ बन गई, उन्होंने इसी चीज़ को इतने शॉर्ट करके लिखता, ठीक है जी। हुण देखो ये तो सीगा कि मेरा बड़ा हो सकता 9/2 तो या फिर वो इक्वल हो सकता, बट मेरी कॉम्पलीमेंट ने की बोलिया सीगा सेम इस एग्जाम्पल वांगू ओपोजिशन का मतलब 7 तो बड़े सीगे नंबरस, बट जो ओपोजिशन लाई कॉम्पलीमेंट लाया 7 तो घट हो गए, तो सेम चीज़ यही हो गई। हुण इत्थे की सीगा कि 9/2 तो सारे नंबरस इक्वल होणगे या फिर बड़े होणगे, बट मैं वह ओपोजिशन फाइंड किया कॉम्पलीमेंट, इसका मतलब की हो गया 9/2 तो नंबर छोटे होने चाहिए आ। हुण 9/2 मैं सॉल्व आउट किया कितना बनता पाया 4.5, इट मीनस की हो गया कि मेरे 4.5 तो नंबरस लैस होने चाहिए, तो किन्ने आ जाएंगे 1 2 3 4, नैचुरल की गल करता नैचुरल कितने तो स्टार्ट होता है 4 2, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 तक ही हो सकता है, बिकॉज 4.5 तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, पॉसिबल नहीं, उन्हें की क्या लैस दैन और इक्वल टू, ठीक है जी। तो मेरा कितना होगा लैस दैन और इक्वल टू 4 1 2 3 4, ठीक है, सेम इस एग्जाम्पल वांग ध्यान रखियो। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सैट्स। मेरे को ए बी फस्ट पार्ट च ए बी सैट दिते हैं, दैन सैकेंड पार्ट च अगेन ए बी सैट, अगेन थर्ड च उन्होंने की बोलिया है कि इन्हों का यूनियन फाइंड करना है, मतलब इन्हों का कॉम्बीनेशन फाइंड करना, कंबाइन करना है। पहले सैट च देखो ए सैट च किया 1 2 3 4, बी च किया 2 3 5, कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करके हम देखो 1 2 लिख लिया 3 4 ए सैट इत्थे बी सैट, हुण जो इन्होंने कंबाइन करके बन गया मेरा 1 2 3 4। हुण देखो 3 डबल टाइम सी 2 भी डबल टाइम सी, मैं बोलिया सी ना यूनियन दे विच डबल टाइम नहीं लिखना, आप सिंगल टाइम ही लिखना, तो कि लिखूँगी मैं 1 फिर 2 3 फिर 4 फिर 5, क्योंकि 2 3 के डबल टाइम आ रहे उन्होंने आप एक बार ही लिखना है। एक दोनों की मतलब बन गया कि मैं कंबाइन करके लिखता, इकट्ठे करके सैट लिखते, ठीक है। नैक्सट देखो सैट की गिवन आ एक्स बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, अपना Z किहनूं बिलोंग करता सी इंटीजर्स नूं, ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स स्केयर ग्रेटर दैन 7, ठीक है। तो यह मतलब इंटीजर्स एक्स स्केयर ग्रेटर दैन 7, ठीक है जी। बी सैट अपने को गिवन ही पिया 1 2 3। हुण उन्हें की क्या ए सैट की गल की, पहलों मैं इस इक्वेशन नूं प्रॉपरली एक रोस्टर फॉर्म च बना लवां, सैट बिल्डर फॉर्म के विच है ना, मैंने रोस्टर च बना लवां, क्योंकि दूसरा मेरे को बी भी रोस्टर फॉर्म च पई आ, अगर ये रोस्टर च आ तो फिर मैं दोनों रोस्टर च लैके ही इन्हों का यूनियन फाइंड करूँगी, ठीक है जी। हुण इनू उन्हें की बोलिया एक्स स्केयर ग्रेटर दैन 7, पहलों की है कि मैं 1 का स्केयर किया, 1 का स्केयर के को आ गया 1 दे, ठीक है जी। 2 का स्केयर के को आ गया 4 दे। हुण देखो 1 भी 7 तो छोटा है, 4 भी 7 तो छोटा, बट उन्हें की गल की एक्स स्केयर वो वाले नंबर्स लो जो 7 तो बड़े होण, तो फिर कितना आ गया 3 का स्केयर 9। हुण देखो जो मैं 3 का स्केयर करती हाँ आंसर कितना आता 9, यदा मतलब 7 तो वो बड़ा हो गया, एक्स स्केयर की जगह तो इतने मैं पुट किया 3 का स्केयर इज इक्वल टू 9, 7 तो बड़ा हो गया 9, फिर अगेन 4 का स्केयर किया, अगेन 16 आ गया, 5 का स्केयर किया 25 आ गया, मतलब जो मैं 3 तो अगे नंबरस ले आ वो सारे 7 तो बड़े देन लग पे, तो 3 आ जाऊगा 4 आ जाऊगा 5 आ जाऊगा 6 आ जाऊगा अप टू सो ऑन, क्यों क्योंकि 3 का स्केयर किया 9, 4 का 16,
5 ਦਾ 25 6 ਦਾ 36 ਸਾਰੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ 1 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 1 ਔਰ 4 ਉਹ 7 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ A ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ B ਮੇਰੇ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ U ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ठीक है जी। तो लिखो 1 2 3 लिखता 1 2 3 हुण देखो 3 इधर भी है इधर भी है तो मैं बोलिया ना कि आप एक बार ही लिखना है तो एक बार ही लिखा दैन 4 5 6 अप टू सो ऑन ये बन गया अपना यूनियन सैट ठीक है। दैन वो दो एग्जाम्पल्स आ देख लो ध्यान नाल नोट कर लो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इन्होंने तुसीं खुद सॉल्व करने की ट्राई करियो ठीक है जी। नोट कर लो कॉपी ते और इन्हों खुद सॉल्व करने की ट्राई करियो। आप नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं हुण नैक्सट देखो लैट A सैट गिवन आ एंड B सैट गिवन आ फाइंड की करनी आ इंटरसैक्शन A सैट 2 4 6 8 B सैट 6 8 10 12 हुण इंटरसैक्शन का साइन का मतलब की हुंदा आ उल्टा U ठीक है जी। उल्टा U लिखता मैं इत्थे इनू इंटरसैक्शन बोलते हैं A सैट उल्टा U इन्हां दे सेंटर च लिखिया दैन B सैट और अपनी इंटरसैक्शन बोलदी की सीगी कि तुसी कॉमन एलीमेंट चूज़ करना है जिद्दां यूनीअन ने की बोलिया सीगा कि तुसी कंबाइन करना मतलब A और B दे सारे एलीमेंट्स नूं इकट्ठा करके लिख देना बट इंटरसैक्शन ने की बोलिया सी A और B दे विचों तुसी उद्दां दा एलीमेंट चूज़ करना जिहड़ा दोनों साइड च होवे कॉमन होवे 2 4 इधर है नहीं ਇਹਦਾ मतलब मैं चूज़ नहीं कर सकती 10 12 इधर है नहीं तो ਇਹਦਾ मतलब मैं ये भी नहीं चूज़ कर सकती हूँ देखो 6 8 इधर भी है 6 8 इधर भी है इन्हों दोनों ने चूज़ करूँगी मैं हाँ जी। तो इतने 6 और 8 दोनों चूज़ कर लिया मतलब मेरे तो इंटरसैक्शन कितनी आई 6 8 मतलब मैं दोनों साइड तो कॉमन एलीमेंट्स चुके ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल देखो A सैट गिवन आ B C D उन्होंने आपनियां चीज़ां तुहानूं फाइंड करन दित्तियां हुण पता लग गया ना इंटरसैक्शन किद्दां फाइंड करी दी आ वो नहीं दस के हटे से ना कि कॉमन एलीमेंट लेने आ देखो हुण तुसीं इहनूं आप सॉल्व आउट करियो मैं तुहानूं इन्हां दियां आवलियां फॉर्म नूं प्रॉपरली समझा देनी उन्होंने की बोलिया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर की गल की इट मीनस की हो गया नैचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 तो अप टू सो ऑन तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन मतलब ए दी सैट बिल्डर फॉर्म नूं मैं रोस्टर च बना लिया ठीक है जी। दैन गल की उन्हें बी सैट दी विच की बोलिया एन ईवन नैचुरल्स नंबर 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन वो बन गया। नैक्सट उन्हें बोलिया ऑड नैचुरल नंबर्स ऑड 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन दैन उन्हें बोलिया एक्स इज़ अ प्राइम नंबर ठीक है। प्राइम नंबर्स मैं तुहानूं दस्सिया सी दो फैक्टर्स जिहड़े खुद दे नाल ही मल्टीपल होण कितना हो गया 2 अपने नाल हुंदा है 3 भी अपने आप च हुंदा 5 भी 7 11 13 अप टू सो ऑन ठीक है जी। हुण उन्हें की बोलिया कि इंटरसैक्शन फाइंड करनी ए बी दी पहले तुसीं ए बी दी इंटरसैक्शन फाइंड कर लो निकलिया पिया ए और बी फिर तुसीं ए सी दी फाइंड कर लो ए सी निकलिया पिया ए डी बी सी ठीक है जी। दैन तुसीं इदां फाइंड कर सकते हो ना सारियां दियां इत्थे नोट कर लो और आ जिहड़े इहदे सैट बने उन्होंने नोट कर लो फिर खुद कॉपी ते ट्राई करियो सॉल्व करन दियां सारियां इक्वेशनस ठीक है जी। इंटरसैक्शन समझाती है एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाती एक हुण बाकी ट्राई करो खुद सॉल्व करन दी ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सैट्स आर डिसजॉइंट ने की बोलिया सीगा कि वो अलग अलग दूर दूर पे होंगे आ ठीक है जी और उन्होंने इंटरसैक्शन 5 दे इक्वल आती मतलब खाली आती है ठीक है जी। देखो फर्स्ट सैट की गिवन मैं तो 1 2 3 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर एंड 4 एक्स के लाई कर दिया 4 तो और 6 तो की बोलता है कि लैस दैन 4 और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर दैन 4 और इक्वल हो सकती है 6 तो लैस और इक्वल हो सकती है मतलब कहना कि चाहे उन्हें कि एक्स देखो 4 तो उपर हो सकती है या फिर 4 दे इक्वल हो सकती है। दैन दूसरा उन्हें ये बोलता 6 तो घट हो सकती है और 6 दे इक्वल हो सकती है यही कंडीशन बोली तो आ की जाऊगा 4 5 6 यही आ जाऊगा है ना। तो फर्स्ट इन्हें बोलिया डिसजॉइंट सैट हुण देखो फर्स्ट की बोलता 1 2 3 4 ठीक है जी एंड दूसरे कितने एलीमेंट आ गए मेरे सॉल्व आउट करके 4 5 6 देखो पहले 1 2 3 4 आ दूसरे मेरे कि आ गए 4 5 6 ठीक है। उन्होंने बोलिया आ कि हुण इन्हां दा डिसजॉइंट फाइंड करना है देखना है कि डिसजॉइंट है कि नहीं। इंटरसैक्शन आप देखते सी हुण इंटरसैक्शन की बोलती होंगी कॉमन एलीमेंट बट इत्थे भी 4 है इत्थे भी 4 है इसदा मतलब क्या कि मेरा 4 कॉमन एलीमेंट आ इट मीनस नॉट इज उन्हें की बोलिया सीगा ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ तो डिसजॉइंट आ ठीक है बट इत्थे क्या गया नॉट इज इक्वल टू 5 इसदा मतलब की हो गया नॉट डिसजॉइंट ठीक है। जिहड़ियां डेफिनेशन समझाइया मैथड समझाया वो ना भुल्लियो। नैक्सट देखो ए सैट गिवन ए ई आई ओ यू बी सैट आ सी डी ई एफ इन्हां दे विचों कॉमन देखना इंटरसैक्शन मतलब कॉमन दोनों दे विच ई कॉमन आ इट मीनस नॉट इज इक्वल टू
फाई अगेन की हो गया नॉट डिसजॉइंट। दैन उन्हें की बोलिया इज एन इंटीजर्स, ईवन इंटीजर्स किहड़े हुंदे आ -6 -4 -2 2 4 6 मतलब माइनस इनफिनिटी तो लैके पॉजिटिव इनफिनिटी तक। बी की हो गया इज एन ऑड इंटीजर्स, ऑड किहड़े हो गए फिर नैगेटिव ऑड नंबर तो लैके पॉजिटिव ऑड नंबरस तक। हुण इन्हां दोनों दे विच कुछ है क्योंकि ये तो ईवन हो गया, ये सारे ऑड हो गए, इक्वल थोड़ी है ना कुछ भी। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो की हो गया फाई, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया दिस सेट और अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। नैक्सट देखो यू सैट गिवन आ, ए सैट गिवन आ, बी सैट गिवन आ। फाइंड की करना ए यूनीअन बी का होल कॉम्पलीमेंट इज इक्वल टू कहते आ गया ਸੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ए जो अंदर खुल जाना अंदर जाके ए यूनीअन सॉरी ए कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट, ठीक है। पहले ये सॉल्व करते हैं। यू सैट गिवन आ, ए सैट गिवन आ, बी सैट गिवन आ। उन्हें की बोलिया ए यूनीअन बी का होल कॉम्पलीमेंट। पहलों मैं ए यूनीअन अंदर देखो की चाहिए ए यूनीअन बी, पहले स्टैप मैं ए यूनीअन बी नूं सॉल्व आउट करती हाँ। ए यूनीअन बी की बोलता सीगा कि कंबाइन करके सारे एलीमेंट आ जाने हैं, चलो जी आ गए। फिर उन्हें की बोलिया ਉਹਦਾ होल कॉम्पलीमेंट। हुण मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ होल कॉम्पलीमेंट करता। हुण इन्हां सारिਆਂ ਦਾ होल कॉम्पलीमेंट ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि मैं यू सैट चों इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ माइनस करूँगी। जो यू सैट चो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं माइनस किया, मेरे को बच के गया 1 और 9 जो ये नहीं सी, तो मेरा कॉम्पलीमेंट किहड़ा आ गया होल 1 और 9, ठीक है जी। और फिर ए कॉम्पलीमेंट किहड़ा हो जाऊगा इत्थे 2 4 6 8 आ, तो यू दे विचों मैं ए नूं माइनस कर दूँगी, जो बच गया वो कितना आ गया दिस। दैन फिर मैं की कर दूँगी यू दे विचों बी नूं माइनस कर दूँगी, की हो जाऊगा मेरा बी कॉम्पलीमेंट। तो उन्हें की बोलिया सीगा इहनूं जदों सॉल्व आउट कर लिया फिर इहनूं भी सॉल्व आउट करना है, ठीक है जी। हुण तुसीं फिर इनू तो सॉल्व कर लिया। फिर उन्हें की कहा सीगा ए इंटरसैक्ट सॉरी ए कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट, मतलब मेरे तो ए कॉम्पलीमेंट भी चाहिए बी कॉम्पलीमेंट भी चाहिए। तो मैं किद्दां फाइंड किया, यू दे विचों ए नूं माइनस करता ए कॉम्पलीमेंट आ गया, यू दे विचों बी नूं माइनस करता बी कॉम्पलीमेंट आ गया, लिख ले। फिर इन्होंने दोनों की इंटरसैक्शन कर दो। जो मैं इन्होंने दोनों की इंटरसैक्शन की, इन्होंने दोनों चो कॉमन किहड़ा पॉइंट आया इंटरसैक्शन मतलब कॉमन 1 और 9 1 और 9, ठीक है जी। फिर उन्हें की बोलिया सीगा ਇਹਦਾ आंसर ਇਹਦੇ आंसर ਦੇ इक्वल आना चाहिए, हाँ जी। ਇਹਦਾ आंसर और ਇਹਦੇ आंसर दोनों सेम आंदा, इट मीनस ये दोनों आंसरस इक्वल आते हैं, ठीक है जी। नैक्सट क्या ए इंटरसैक्शन बी का इत्थे यूनीअन से ना, हुण इत्थे की हो गया बी सॉरी इंटरसैक्शन का होल कॉम्पलीमेंट। फिर की हो गया ए कॉम्पलीमेंट यूनीअन बी कॉम्पलीमेंट। अगेन ए इंटरसैक्शन बी नूं मैं पहले सॉल्व आउट कर लूँगी, जोड़ा आंसर आऊगा वह मैं आ देखो सॉल्व आउट कर लिया। फिर जोड़ा आंसर आया वह मैं कॉम्पलीमेंट करता, ठीक है जी। अगेन मैनू की चाहिए सीगा ए कॉम्पलीमेंट बी कॉम्पलीमेंट, इन्होंने सॉल्व आउट करके उन्होंने दोनों का यूनीअन करके आंसर लिया था, दोनों का सेम आया। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ आ गया 2, ठीक है जी। जो मैं नैक्सट ਨੂੰ सॉल्व आउट किया ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ आ गया देखो ए इंटरसैक्शन बी का होल कॉम्पलीमेंट आह सी, ਇਹਦੇ इक्वल आ चीज़ आनी चाहिए सी, ਇਹਦਾ आंसर दिस। तो दैन जो मैं इन्हू सॉल्व किया ਇਹਦਾ आंसर दिस, ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने दोनों के आंसर सेम आते पे आ, तो दोनों किहड़े दे इक्वल हो गए आपस च इक्वल हो गए, ठीक है। इन्होंने प्रॉपरली तुसीं कॉपी के उत्ते सॉल्व आउट करके देखियो, क्योंकि इन्हां दे सारे आपां मैथड्स, ठीक है जी, आपां मैथड्स समझ चुके हैं, इन्हां दीयां डेफिनेशन समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल्स भी आपां नाल नाल सॉल्व आउट कीतियां सीगियां, जिहड़ियां खुद तो लैके सॉल्व आउट कीतियां सी, ठीक है जी। हुण तुसीं जस्ट इन्हां दे विच अप्लाई कर लियो। नैक्सट देखो एक्स सैट गिवन आ, ठीक है जी, और वाई सैट गिवन आ। फाइंड करन की बोले उन्हें एक्स माइनस बी वाई माइनस एक्स। हुण देखो एक्स माइनस बी मतलब ए माइनस बी सॉरी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स आपां कीता सी ना, ए माइनस बी माइनस ए, वो की सीगा डिफरेंस ऑफ टू सैट्स, याद होगा ना डिफरेंस ऑफ टू सैट्स की डेफिनेशन देखो, दैन उन्होंने देखो किद्दां फाइंड करना। फिर लास्ट इंटरसैक्शन आ, ठीक है जी। तीनों सॉल्व आउट कर लियो, सारिया एग्जाम्पल्स सारिया डेफिनेशनस देख लियो, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स इन्हां दे थ्रू डेफिनेशन के थ्रू अप्लाई करके सॉल्व आउट कर लियो, सारी एक्सरसाइज इन्हां दे थ्रू सॉल्व आउट कर लियो, ठीक है जी। बस ये आ कि तुसीं इहदियां प्रॉपरली डेफिनेशनस जिन्नियां आपां करवाइयां, दैन उहदे नाल दियां एग्जाम्पल्स जो समझाया वो सारा कुछ अप्रूवल करवा दिओ, ठीक है। वही सारा कुछ तुसीं एग्जाम्पल्स ते अप्रूवल करवा दोगे, सॉल्व आउट हो जाना। वही सारा कुछ तुसीं एक्सरसाइज ते अप्रूवल करवा दोगे, वो भी सॉल्व आउट हो जाने, ठीक है जी। बाकी जिस सम विच प्रॉब्लम आती हुई तुसीं किसी टाइम भी पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है जी।